ناظرین، آج صبح شہر میسور کے شانتی نگر مسجد عمار کے قریب موجود ٹیپو پبلک اسکول میں عظیم الشان پیمانے پر 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہی نہیں، یہاں کے بچوں کی قابلیت کو بھی سامنے لایا گیا۔ تقاریر اور حمد نعت کے ذریعے بچوں نے اپنی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے تمام کی داد تحسین حاصل کی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اسی اسکول کے احاطے میں محلے کے اطراف موجود خواتین میں خود کفیل بنانے کے سلسلے میں اللہ سید احمد صاحب اور مرحومہ خورشیدہ بیگم جو اس ادارے کے سیکریٹری سید یونس کے والدین ہیں، ان کے نام سے منسوب شدہ اس کمرے میں خواتین کو خود کفیل بنانے کا ایک بہترین ذریعہ دیا گیا ہے۔ ٹیلرنگ کورس مکمل کر چکی خواتین کو یہاں پر صنعت اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ تمام مہمانان کے ہاتھوں ان انعامات اور صنعت کو یہاں پر پیش کرتے ہوئے گویا ان کے اندر موجود صلاحیت کو عزت افزائی دی گئی۔ اس کے بعد آج بہترین پیمانے پر تقاریر، حمد نعت پیش کرنے والے معصوم بچوں کو بھی مومنٹو پیش کیا گیا۔ ایک مومنٹو میں ایک خصوصیت یہ رہی کہ جامعہ ٹیپو کی مسجد کا ایک مومنٹو پیش کیا گیا تاکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تعمیر کردہ اس مسجد اعلیٰ کی یاد ہمیشہ ان کے دلوں میں باقی رہے۔ اس سلسلے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں، ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کرتے ہوئے ان بچوں کی ہمت افزائی ضرور فرمائیں۔ تب تک کے لیے مجھے سب در خیر سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پبلک اسکول کے دو چھوٹے سے ہوشیار بچے ہیں جو یو پی جی میں پڑھتے ہیں، عبدالرحمان اور عالیہ، جو دونوں آئے اسٹیج کے پاس اور مطالبہ کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کس کے؟ اللہ کے۔ کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اولاد کس کے؟ حضرت السلام کے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ کیا مانگے ہم؟ عاشقی کی توفیق۔ اس کے بعد اچھا رہنا اور پڑھنا لکھنا۔ کتنا خدا ہے؟ خدا ہے۔ خدا کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ تم کون ہو؟ مسلم بچے۔ تمہاری کیا ہے؟ دین اسلام۔ اسلام کے کتنے فرض؟ 5 فرض۔ پہلا فرض کلمہ پڑھنا۔ دوسرا فرض نماز پڑھنا۔ تیسرا فرض قرآن شریف کے 30 روزے رکھنا۔ چوتھا فرض مال کا زکات دینا۔ پانچواں فرض کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ کس سے دعا ہو؟ اپنے خدا سے۔ کیوں کر دعا ہو؟ دونوں ہاتھ جوڑ کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اے اللہ دین کا بول بالا کر، رزق میں برکت دے، علم میں عقیدے، صحت تندرستی عطا فرما، نیترا پر چلا۔ اے اللہ تمام کی دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے،
चेहरों के तिलावत का एक नूर सजाएंगे तत्हीरो हर दिल की कुरान की तिलावत से शादत रहे हर वो ईमान की मोहब्बत से तत्हीरो हर दिल की कुरान की तिलावत से शादत रहे हर वो ईमान की मोहब्बत से हम रब के हुजूर अपने जब से को झुकाएंगे कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे चेहरों के तिलावत का एक नूर सजाएंगे नूही से हम गुंचे गुलदान मोहम्मद के हम वारिस खुशबू है फरमान मोहम्मद के नूही से हम गुंचे गुलदान मोहम्मद के हम वारिस खुशबू है फरमान मोहम्मद के हर दर्द सीनों को फूलों से सजाएंगे कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे चेहरों के तिलावत का एक नूर सजाएंगे आका ने कहा हमको बेहतरी वो इंसान है तो ईद के दाई है जो रहबर ईमान है आका ने कहा हमको बेहतरी वो इंसान है तो ईद के दाई है जो रहबर ईमान है कुरान को सीखेंगे और सबको सिखाएंगे कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे चेहरों के तिलावत का एक नूर सजाएंगे जज़ाकल्लाह जब तड़के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे जब तड़के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है जहाँ में उनसा चेहरा है नहीं फंदा जबी कोई अभी तक जन सकीना उड़ गए उनसा हंसी कोई नहीं रखी कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर ये 6 months का कोर्स है टेलरिंग हाँ फैशन डिजाइनिंग बेसिक सब बेस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा टेलरिंग कोर्स तकरीबन 10 साल से चल रहा है। ये 10 साल में एवरी 6 मंथ से 18 से 20-25 बच्चे ऐसा निकल गए। इस बार तकरीबन 18 बच्चे निकल गए। तो इनके तरबियत के किताबें जो ये है जो सिक्कर इनका प्रैक्टिकल बुक है जो प्रोफेशनल की तरह हमारे टीचर मोहतरमा मुजान सिंह इनका पूरे फिलहाल कितने जो है स्टूडेंट्स 18 बच्चे नहीं होगा सो इनका सिर्फ होगा। कितने महीनों का कोर्स होता है? ये 6 मंथ्स का है। 6 मंथ का तो ये बच्चे एक ही साइड के सर? नहीं ये टेलरिंग के अलग ही चेंज होगा। टेलरिंग के अलग ही चेंज हो इसमें शादीशुदा भी सब पूरे मोहल्ले वालों को है। ये अलग ही कोर्स है स्कूल को जमा नहीं है।
निस्वान में नीचे है ये बाकायदा नोट्स जो है implemented है। हमारे टीचर तो सब एक सवाल आपसे, ये कमरे के नाम लिखा हुआ है, क्या उनके तरफ से बनाया गया था? नहीं तामीरी काम के टेम्पो हमारे टीपू सुल्तान एजुकेशनल ट्रस्ट में फंड कम था, इसीलिए एक एक रूम एक जने कुबुलिंगर ग्रुप को तो हमारे वालिद के नाम से एक रूम का अखराजात जो आया मैं दिया, जो मरहूम हमारे सदर मंसूर से खुशहाली है ना, उनके खुशहाली साहब के नाम से एक रूम का अखराजात दिया है, और एक हमारे मुफ्ती साहब उनके वालिद के नाम से एक बना, और एक हमारे RTO शफी साहब है उनके वालिदैन के नाम से उन्होंने एक रूम बना। तो ऐसा तो सवाब जारिया की नीयत से ऊपर ये क्लास रूम तामीर करेंगे। आज जो भी कोर्स कंप्लीट करके जो सर्टिफिकेट लिए हैं, ये सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है? अहमियत अब जो इनके घर वाले और इनके शौहरा अगर इनको काम को भेजना चाहती हैं तो भेज सकते हैं, इसके ऊपर जॉब मिल सकता है। इसमें ऐसे हमारे बहुत बच्चे जा कोई जॉब को माशाल्लाह हाँ, उनकी रोजी या तो घर में उन्होंने तिजारत भी उनका घर में खुद का कर सकते हैं। इसमें नहीं मशीन का तो हमारे में फंड नहीं है, वो नहीं है, तो एरिया के कारपोरेटर्स को भी बोल रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है, तो पॉलिटिकल उनका अलग अलग रहता है। कोई ऐसी स्कीम बताइए उनको, ये तो सीख चुके हैं, इनको मशीन की जरूरत नहीं होती है ताकि वो अपने नहीं स्कीम को तो उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उन्होंने खुद डालने को करना हो, वो करे तो वहाँ से मिल सकते हैं। सर ये कोर्स फीस वगैरह है? नहीं फीस नहीं जमा कहते हैं 100 रुपीज हमें फीस लेंगे उसको, पूरे कोर्स के लिए नहीं मंथली माना 6 मंथ्स के 600 रुपीज उन्होंने पे कर, वो खाली वो मिशनर जिसने रिपेयरी का है, टीचर का सैलरी है, वो मेंटेनेंस के वास्ते लेंगे, दूसरा वैसा के भी ज्यादा उनके ऊपर अफोर्ड डालना वो सब नहीं है। इंशाल्लाह अब हमें आइंदा में नेक्स्ट ईयर हमारे दूसरा हमारा स्कूल का जो फंड अगर इसमें सेविंग हुई तो नेक्स्ट स्कीम में हमें मिश्रण देने का सोच रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे प्रोसेस देने हैं। जो बनाया गया सारे स्कूलों में नहीं बनाया जाता, तो एक तरह से स्कूल में जो किया गया है उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी इदारा है और शहीद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो इदारा बना है, जो सिरंगकोट में जामिया टीपू जो मदरसा चल रहा है, वो मदरसे को लेकर उसके बाद में हम इमारत को रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद फर्स्ट LKG UKG करें, बाद टेलरिंग का करें, उसके बाद रफ्ते रफ्ते फर्स्ट टू 8 तक स्कूल का करते हैं। ये सब जो है हुजूर जो मुफ्ती साहब जो इखरा के बारे में जो बयान दिया है, तो इखरा जो हमारा दीनी इसमें जो पहला जो इल्म होना, तो इल्म की वजह से हमें जो इतना बड़ा बेड़ा उठा को है, जो उसी के साथ 1500 साल मिलाद भी जो है ये मौका हुआ। तो आने वाले दिनों में SLC और इरादा है? नहीं अब तो इरादा तो फिल वक्त नहीं है, हमें दूसरे स्कूल से अडाप्ट कर ले तो हमारे 9th 10th के दूसरे बच्चों को वहाँ भेजने का हमें सोच लेते हैं। यहाँ पे जामिया के निस्वान से ये आपको जो टेलरिंग कोर्स का एक मौका दिया गया, आप मुकम्मल कर चुके हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आज हाउस वाइफ को आपको कैसा फील हो रहा है? आज सती पहले से तो हमारा कदम से हमें सामने को फ्यूचर बने जे घर से जो भी मामूलात थी उसमें हमारे इससे हमें खुद ही से हमें कमा को ये करे जे एक हिम्मत मिल छे, और फिर भी घर का ये करना मेंटेनेंस भी करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, फिर भी घर में हमारा हमें करना था तो एक जज्बा रहता है, एक उम्मीद के सका ये भाई को बच्ची को एक हिम्मत मिल छे, और एक इज्जत के सका होता है, अपने आप में बहुत ये रहता है। हाँ अपने आप में मैं कुछ कर सकती हूँ कैसा का होता है, अपने आप में जज्बा पैदा होता है, मेरे से मैं ये करे जे किसके भी हाथ के नीचे नहीं होता, अपने खुद ही से मैं खड़ सकती हूँ के जज्बे से मैं अपने आप से ये करना बहुत चाहती हूँ। मुझे बहुत जज्बा था, टेलरिंग करना बहुत जज्बा था, जैसा कि हमारे शादी होने से अब्बा क्या नहीं भेजे, शादी होने के बाद हमारे नौशों से बहुत रिक्वेस्ट करी थी मैं, एक 11 साल हुआ नहीं भेजे थे, फिर भी मेरा बेटा इधर ही पढ़ रहा है, स्कूल में ही पढ़ रहा था, 1 साल हुआ था, फिर भी जब कोशिश करी जब नहीं भेजे थे, बाद और उनके दिल में क्या ये हुआ कि ये साल जाओ करके बोले, फिर भी मैं 1 मंथ में पूरा सीख ली इधर। अल्लाह फजल से मैम भी बहुत अच्छा ये करती, जो इंटरेस्ट जैसा करती बच्चे वैसा सामने को लेके जाती, और जैसा नहीं ये टच में रहना यही सच रहना के सका नहीं ये करते, जो भी सीखती उनको जैसा सामने दिखाना उनको मालूम है, जो तरीके से आप ये सीखो ही अभी आगे बढ़ो,
और वो मैम दूसरा भी ये करती और दिन के बाद भी ये कर लेती टेलरिंग में करवा। हमने तो जज्बा इतना फील हुआ करवा नहीं, हम 1 महीने में सीख लेना कहने का बहुत ये हुआ, मुझे चैलेंज हुआ। आपको दीनी इल्म भी मिला? हाँ मिलता है, बहुत ये होता है, बहुत यहाँ से जो भी आने वाले भी हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखे जे आन दे। फिर भी हमें बोल रही ना 1 महीने कुछ कितना ही प्रिपेयर कर देती मैम करवानी। अल्लाह फजल से सब कुछ अच्छा सिखाती, सब ये करती। हर डिजाइनर भी फैशन डिजाइनर सब भी एक वो फीस का भी अमाउंट बढ़ी नहीं है। दूसरी जगह बहुत कीमत थी, हमें 3 जगह पूछे, 3 जगह भी कीमत 1500 2000 ऐसा कीमत है। फिर भी हमारे मैम अल्लाह फजल से स्कूल से ये हुआ है, उससे बहुत ये हुआ और गरीबों से भी बहुत ये हिम्मत ये जज्बा है ना, बहुत इससे ये होता है। ये ड्रेसेस वगैरह जो सीख रही हैं, हाँ कौन सी है? हमें सी लेती दिखाइए तो 3 महीने का कोर्स ये? नहीं 6 महीने का कोर्स। 6 महीने के बाद आपको ये मतलब ये ड्रेस सीने का ताकत आ गई? ये 1.5-2 महीने में पूरा ड्रेस फिनिश कर सकती। अच्छा, अंदर होती सलाहियत आ गई? हाँ उतनी सलियत आ जाती है। करीब है हाँ। तो आपको खुशी होगी शायद। हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, कमाई भी कर सकती हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे। जामिया टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से टीपू पब्लिक स्कूल में जो है जलसा रखा गया था। आप असातिज़ा जितने भी तालिबे तलबा यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? माशाल्लाह हमारे स्कूल से बच्चे बहुत अच्छा इल्म हासिल कर रहे हैं, दुनिया की इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे बच्चे में बहुत जज्बा है, टैलेंटेड। इनको सामने लगाने की कोशिश करे तो हमें इंशाल्लाह इन्हें बहुत आगे जाको एक मकाम को पहुंचते हैं। मेरी एक दरख्वास्त है तो हमारे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबी दे, फिर उन्होंने एक जगह मकाम को पहुंचे। तो हमारा जितना बाहर देखने गए तो हमें बहुत सारे दूसरे कौम के है, मगर हमारा क्या मकसद है तो यहाँ से हमारे जो बच्चे निकल को जाती हैं उन्होंने एक मकाम को पहुंच को हमारे दीन का भी दुनिया के साथ साथ दीन का नाम भी रोशन होता। फिर हमारे मैनेजमेंट होंगे, हमारे स्कूल के टीचर्स होंगे, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला और भी हिम्मत ताकत देंगे, बरकत देंगे। पेरेंट्स भी कोऑपरेट करना हमारा क्या है तो यहाँ हमें हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश कर रही, मगर बाहर से भी हमने पेरेंट्स से भी कोशिश होना। पेरेंट्स से दरख्वास्त करती हूँ कि उन्होंने भी हमारे साथ साथ कोऑपरेट करेंगे और बच्चे भी होता अच्छे बहुत माशाल्लाह बहुत जज्बे के साथ जरे दिन में इतना तालीम हासिल करे। अब जो जलसा हुआ उसके बारे में इंशाल्लाह आगे आप शुरू से कर लेंगे तो और भी अच्छा कामयाबी मिलती है को मुझे भरोसा है। 185 जी मुफ्ती साहब ने तकरीर में असातिज़ा की बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी जी, तो आप वो तमाम लोग खिदमत को किस तरह देखते हैं आप? हमें ड्यूटी कलेक्ट नहीं निभा रहे, शुरू से भी हमारे दिला में क्या है सो खिदमत कौम। हमारे सैलरी का हमें सोचने नहीं जाते, हमारे घरान के बच्चे जैसा हमना इम्पोर्टेंट है वैसा हमें भी यहाँ अपने बच्चे अगर को समझ कुछ पढ़ा ले जा रहे। आपसे भी दुआ है कि अल्लाह से भी दुआ करती है हमें कि हम ना हमारे बच्चों को आगे कामयाब करेंगे। टीपू पब्लिक स्कूल पिछले कितने सालों से चल रही है? माशाल्लाह 14 साल से चल रही है। यहाँ पर जो है सिर्फ एक स्टैंडर्ड है 100 जी, अभी आने वाले दिनों में 10th स्टैंडर्ड PUC वगैरह भी इंशाल्लाह से बोलो जी, इंशाल्लाह आगे भी 9th SLC करना और को हमारा मकसद है। अल्लाह वो मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम ये करें तो एक कामयाबी मिलती है। एजुकेशन के साथ कैरेक्टर की बहुत जरूरत है। जी जी, डिसिप्लिन डेवलपमेंट तो क्या कहना है? कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं उसके तरफ भी हमें बहुत तवज्जो दे रही। दीनी एजुकेशन के साथ साथ उनका डिसिप्लिन होंगे, कैरेक्टर के बाद आजकल बहुत कुछ माहौल देख रही हमें, वो माहौल के वास्ते भी हमें बहुत बच्चों में ख्यालात डाल रही, कैसा करे तो कैसा, क्या करने से क्या हो सकता, ये सब भी हमें गलत रास्ते को जाने से बच्चों को रोक रही। हर जुम्मा जी वालिदैन का सपोर्ट कैसा है? वालिदैन का सपोर्ट अच्छा है माशाल्लाह जी। मोहल्ले में टीपू पब्लिक स्कूल खुलने से जी कितना फायदा हुआ आपको है बच्चों को वालिदैन? जी फायदा हो रहा है सर, बहुत हो रहा। आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ को इत्तेदाद जो है बच्चों इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश करने को है, इंशाल्लाह बढ़ती है। और साथ में क्या होता है हर जुम्मा भी यहाँ आफ्टरनून नमाज रहती है, दूसरे टाइम पर भी नमाज रहती है, लेकिन खास करके जुम्मा में बयान भी रहता, बच्चों भी खुद बयान देते हैं।
तो मैनेजमेंट का कॉपरेशन कैसा आपके साथ? माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर। जो भी ये इमारत खड़ा कर रहे हैं, जो भी यहाँ से जो कुछ भी मेहनतें कर रही है, उनके लिए आपका क्या कहना है? यानी कि जिम्मेदारों के लिए आपका क्या कहना है? जिम्मेदार माशाल्लाह बहुत कोशिश कर ले जा रही है, और भी हम ना सपोर्ट करते हैं, हमें क्या बात को भी हम ना पीछे नहीं करते, जो हमें रखती है वो बात हमारी भी सुनती है, हमारे साथ उन्होंने भी कोऑपरेट कर रहे हैं सर। तो टीम वर्क को आप जानते हैं? टीम वर्क जी जी, यूनिटी है, मैनेजमेंट के साथ भी यूनिटी है, हमारे टीचर्स में भी यूनिटी है, मिलकर हमें कर ले जा रहे हैं। जो भी बच्चा कम हालत में है, उनके घर कम हालत में है, उनके लिए जो है किस तरह का इंतजाम है? सर मैनेजमेंट से कंसेशन करती है उनके वास्ते, बहुत ही गरीबी हालत रहती है, कुछ हॉस्पिटल का हेल्थ इश्यू रहता, वैसे घरां का कुछ उनके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो हमारे मैनेजमेंट के साथ रखे, तो उन्हें उनकी तरफ से क्या कोशिश करना हो कर को कम करती है सर। ये गरीबों को तो हालांकि यहाँ की फीस दूसरे स्कूलों को कंपेयर करने गए तो पूरा पैकेज है, सो हम ना फुल फीस कम, एक चीज भी हमें बाहर से खरीदने का क्या भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ उम्मत खतरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का नजराने खिदमत पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम। सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज टीपू पब्लिक स्कूल शांति नगर मैसूर में हमारे आका मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू पब्लिक स्कूल के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, जिम्मेदारान, मेंबरान, हमायनी और बहुत सारे लोग यहाँ पर हाजिर हैं। उलमाए किराम भी हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी इनायत रहमान साहब की बिला और दूसरे लोग भी हाजिर खिदमत हैं। बड़ी देर से टीपू पब्लिक स्कूल के तलबा अपना इल्मी मुज़ाहरा फरमा रहे थे, और मैंने आने के बाद तादाद देखी। परसों में हाफिज व क़ारी मुस्तफा साहब से पूछा तो बोले हजरत 20 पर 3 बच्चे होंगे, मगर आज आकर के देखा तो 27 बच्चे हैं माशाअल्लाह। 27 देख करके तबीयत इसलिए भी खुश हुई कि 27 की निस्बत हमारे लिए बड़ी मुबारक निस्बत है। 27वीं शब को हमारे आका सैयद आलम को मिराज हुई थी, सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से ये अदद बड़ा मुबारक रहा, बड़ा बेहतर रहा। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़िए उस रब के नाम जिसने पैदा किया। होना ये चाहिए था कि मीलाद का प्रोग्राम है तो मीलाद के ताल्लुक से कोई गुफ्तगू होती, मगर इल्म के ताल्लुक वाली आयत करीमा इसलिए पढ़ी गई है। ये कहने वाले ने कहा है कि हमारे नबी की मीलाद का आलम यह है कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद से पहले दुनिया तारीख थी, जुल्मत कदा थी, इल्म का अंधेर था, मगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आकाए कायनात की मिलाद के सदक़े में सारी दुनिया में रोशनी फैली, इल्म का उजाला फैला। तलबा ने शानदार मुज़ाहरा किया। मैं तमाम टीचरों को, बिलखुसूस हाफिज़ क़ारी मुस्तफा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं कि चंद ही दिनों में तलबा को इस अंदाज से आपने तैयार किया। और मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे भटक गए, भूल गए, लेकिन इन बच्चों का माइक पर खड़ा हो जाना यही एक कमाल की बात है। बहुत बड़े जिगर की बात होती है माइक पर खड़ा होना। इस तरह तय की है हमने मंजिलें
گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. آج یہ جو بچے بھٹک رہے تھے, کل انشاءاللہ العزیز اگر اور تھوڑی سی توجہ دی جائے گی, ان کا خوف ختم ہوگا, روانی آئے گی, تو بہتر سے بہتر خطیب لوگ بن سکتے ہیں. تو کوئی پیدا ہوتے ہی خطیب یا ناتخواں نہیں ہو جاتا ہے, ایسے ہی سکھایا جاتا ہے. بچے کبھی بھٹکتے ہیں, کبھی بھولتے ہیں, بھٹکتے بھولتے آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہی بہترین ناتخواں, بہترین شاعر, بہترین خطیب, بہترین مقرر بن کر کے چلتے ہیں, چمکتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور خوشی کی بات ایک اور یہ ہے کہ ہمارے ٹیپو پبلک اسکول میں حافظ و قاری مصطفیٰ صاحب کو دینیات کی تعلیم کے لیے بھی رکھا گیا ہے. میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے, ہمارے بہت سارے احباب نے بتایا کہ آج بد مذہبیت جو پھیل رہی ہے وہ زیادہ تر کالجوں اور اسکولوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہے. بہت سارے کالجوں اسکولوں میں اہل سنت کے علاوہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے, اور وہ لوگ جا جا کر کے وہاں پر دینیات کے نام پر تعلیم دیتے ہیں. دینیات کے نام پر اس لیے بول رہا ہوں کہ دین سے وہ دور ہے, تو دین کی تعلیم کہاں سے دیں گے, لیکن نام رہتا دینیات کی تعلیم. اور دینیات کی تعلیم کے نام پر کالج اور اسکولوں کے بچوں کو, ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے اور بد مذہبی کی طرف مائل کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں میرے پاس بھی ہمارے ایک ممبر آئے تھے, اپنا یہ دکھ درد بیان کیا. میں نے کہا اس سے پہلے ہم لوگوں نے مرتبہ اسٹیپ اٹھایا تھا میسور میں کہ جو کالجز ہیں وہاں پر کسی ایک عالم کو رکھا جائے تاکہ وہ دینیات کی تعلیم دے اور وہ بچہ سنی صحیح العقیدہ بن کر کے باہر آئے. اس میں ہماری کچھ کوششیں ہوئی تھی اور ایک دو اسکولوں میں ہم نے کامیابی حاصل کی تھی, لیکن پھر وہ معاملہ ہمارے ہاتھوں میں نہ رہا. لیکن کم سے کم اس مدرسے کے ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہمارے سید یونس صاحب سیکرٹری جامعہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, اور اس مدرسے کے سیکرٹری جن کی بے پناہ کاوشوں محنتوں کی بنیاد پر یہ ادارہ مارد وجود میں آیا ہے, بے پناہ محنتیں کی ہیں. ہمارے صدر اعلیٰ علی جناب منصور سے خوشحالی مرحوم, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے بھی بے پناہ محنتیں کی. ہمارے موجودہ صدر کے والد گرامی علی جناب نواب میر بدر الدین علی خان, انہوں نے بھی بہت ساری محنتیں کوششیں کی ہیں. اور دوسرے ممبران میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں, نام لوں گا تو ہمارے دونوں اقبال بھائی ہیں, سردار بھائی ہیں, اور پھر عبد الوحید بھائی ہیں, مختار بھائی, بہت سارے لوگ ہیں, اور سری لنکا پٹنہ کے ہمارے ممبران. ان سب کی مشترکہ کوششوں سے جو ادارہ عمل میں آیا, تو کم سے کم اس ادارے میں ہم نے ایک سنی عالم کو رکھا ہے تاکہ جتنے طلباء یہاں پر رہیں سب یہ اہل سنت و جماعت اور سنی صحیح عقیدہ بن کر کے اس ادارے سے نکلیں. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ہاتھوں میں اگر ہوتا تو اور کرتے. بہرحال ایک بڑی لمبی داستان ہے جس کو میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن میں نے جو آیت کریمہ پڑھی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام پر پڑھی جس نے پیدا کیا. تو اسکول کی تعلیم کا اسلام مخالف نہیں ہے, کالج کی تعلیم کا اسلام مخالف نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں ترقی کرو, آگے بڑھو, مگر اپنی بنیادی چیز کو چھوڑنا نہیں, اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں, اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں. پہلے اپنی بنیادی چیز حاصل کرو, اس کے بعد دنیا کے کسی میدان میں آگے بڑھو. اسلام کی تعلیم دیتا ہے. بہرحال حضرات, بہت خوشی ہوئی. اور ہمارے سیکورٹی صاحب نے بتایا کہ 8ویں کلاس کے بعد یہاں پر کلاس نہیں ہے. اب وہ بچے جو 8ویں کلاس کے بعد یہاں سے نکلیں گے, اگر وہ دینیات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد آئیں, یہاں ایڈمیشن لے لیں. انشاءاللہ عصر سے لے کر کے مغرب تک ان کے لیے تعلیم کا بندوبست الگ سے کیا جائے گا. یہ اس پر میں بعد میں تبادلہ خیال کروں گا, جتنا حضرت نے کہا تھا میں اعلان کر دیا. اب مختصر بات یہ کی, یہ علم دین ہم حاصل کرتے اس کے فائدے کیا ہیں. ہمارے یہاں پر ادارے شرعیہ دارالقضاء تقریباً 1 سال سے کچھ کم و بیش عرصہ ہو گیا چل رہا ہے.
दो चार जुमले उस पर भी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ने फरमाया रब के नाम पर पढ़ो। इल्म दीन अगर बंदा हासिल करता है तो उसके जरिए से मुश्किलें आसान होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। टीपू पब्लिक स्कूल में जामिया टीपू निस्वान के नाम से जो इदारे शरिया कायम किया गया है, अभी लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी कि इदारा यहां चल रहा है, इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह केसेस आते रहे और उसका शरई एतबार से हल किया जाता रहा। इसकी जरूरत इसलिए है कि आज हमारे बहुत सारे तनाज़ात कोर्टों कचहरियों में जाते हैं, जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वक्त भी बड़ा लंबा खर्च होता है, और ये हम नहीं कह सकते कि वहां पर इंसाफ ही मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं है, न जाने कैसे कैसे केसों में कैसे कैसे फैसले जाते हैं। इदारे शरइया यहां पर कायम किया गया है, फैसले इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी मसाइल हो, परेशानियां हो, आप आए वहां पर इंशाअल्लाह आपके मसले हल होंगे। मैं ये चंद जुमले इसलिए कह रहा हूं कि आप ये ना समझें कि वहां मसलों का हल नहीं। दीन इस्लाम बड़ा अजीम मजहब है, इसमें उलमाए कराम का बड़ा अजीम मकाम है। जो चीजें आपके ज़हन व फिक्र में नहीं आएंगी, इंशाअल्लाह उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में उन चीजों को हल फरमा देंगे। आप इदारे शरिया से फायदा हासिल कर मिसालें भी। शाबान का महीना के बाद सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विसाल मुबारक, विसाल का भी महीना है, 2 शाबान को आपका विसाल हुआ है। इस निस्बत से भी 2 जुमले 4 जुमले में आपके साथ इदारे, हम लोग हनफी हैं, इदारे शरिया में जो भी फैसला किया जाए तो हनफी मसलक के मुताबिक किया जाएगा। अब मसला यह होता है कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं हम समझते हैं इसका हल ही नहीं है, परेशान रहते हैं, इनके पास उनके पास गए, हल नहीं, रातें बेचैनी में गुजरती हैं। लेकिन अगर वही मसला तुम एक आलिम रब्बानी के पास लेकर के आओगे तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी मसले का हल कर देगा। क्योंकि हमारा मजहब ऐसा है कि दुनिया का कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका हल इस्लाम के अंदर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका हल इस्लाम के अंदर। ये और बात है हमारा इल्म कम रहे, हम ना जाने, लेकिन हल उसका मौजूद है इस्लाम के अंदर। तेरे दामन में एक लालो जवाहर की कमी तो किसी और की, किसी गैर की तरफ क्यों कर देखे। मैं मसला एक को बता दूं। सैयदना हज़रत इमाम आदम हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, बड़ा परेशान। हज़रत ने देखा, कहा उधर गप हो गया, क्या हुआ? कहा मेरी बीवी गिलास में पानी लेकर के आई, खड़ी हुई, मैंने जबान से कह दिया, गुस्से में आया, कोई मामला था, मैंने कह दिया अगर गिलास का पानी, गिलास को जमीन पे रखेगी तलाक, पानी पिएगी तलाक, किसी को पिलाएगी तलाक, फेंकेगी तलाक। न पानी फेंक सकती है, न पी सकती है, न पिला सकती है, न सकती। हजरत मैंने ऐसा कह दिया, अब तो गजब हो गया, पछता रहा हूं, क्या करूं? अब क्या हल है? पिएगी तो भी तलाक, किसी को पिलाएगी तो भी तलाक, और रखेगी तो भी तलाक। क्या? सैयदना इमाम आदम रज़ियल्लाहु तआला मुस्कुराए, कहा जाओ मसला बहुत हल है, एक कपड़ा ले लो, गिलास में डालो, जज्ब कर लेगा, और उसके बाद दूध में डाल दो। न पिया, न पिलाया, न फेंका। मैं सिर्फ बता रहा था कि ये उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में जो फैसला करते हैं, आपकी अकलें वहां नहीं पहुंचेंगी। कुरान और हदीस के फर्ज के करम से, फैजान से उलमा का ज़हन वहां पहुंच जाता है। इमाम आदम की बारगाह में शौसर आया, कहा हज़रत मेरी बीवी जा रही थी, पानी का नाला पड़ा, मैंने कहा अगर नाले इस पानी को छलांग लगाएगी तलाक, और बीवी ने छलांग लगा दिया, अब तो तलाक हो गई। सबने कहा तलाक हो गई। कहा कि इस पानी को छलांग लगाएगी तलाक, उसने छलांग लगाया। इमाम आदम ने फरमाया घबराओ नहीं, पहले बताओ कि वो पानी ठहरा हुआ था या बह रहा था। अब समझ में आ गया मसला। लोगों ने कहा सरकार वो तो बहता हुआ पानी कहा जाओ तलाक नहीं हुई। सुभान अल्लाह। क्योंकि शौहर ने कहा था इस पानी को छलांग लगाएगी तो तलाक, और जिस पानी को इशारा किया वो तो बह गया,
اس کا کہاں چھلانگ, دوسرے پانی پر چھلانگ لگایا, لہذا طلاق نہیں ہوئی. ایک شخص اور آیا, چند مسئلے میں آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں, دائرہ شریعت ضرورت کے کوئی فیصلے کیسے نہیں جاتے ہوں, کبھی موقع پڑے گا تو بتاؤں گا. الحمدللہ 16 سال سے میں نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں, سینکڑوں نہیں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں. ایک آدمی اور آیا, اور بلکہ اس کے بارے میں مشہور ہے خلیفہ بغداد. اس نے کہہ دیا میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو طلاق. چاند اتنا حسین, اتنا جمیل, کتنا خوبصورت ہے, ساری دنیا میں حسن کی مثال چاند سے دی جاتی ہے. ہاں یہ ہمارے نبی کا کمال ہے کہ مصطفیٰ کے حسن کے بارے میں کہا گیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے, احمد کا چہرہ صاف ہے. میرے نبی کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے, لیکن دنیا کے اور کسی حسن کی مثال اگر دی جاتی تو کہتا ہے اس کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت. یہ مثال دی تو خلیفہ بغداد نے کہا میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو طلاق. اس زمانے کے سارے علماء کے پاس خلیفہ آباد نے پہنچایا, فتویٰ پوچھا, سب نے لکھا طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. کہاں چاند کتنا حسن و جمیل, کہاں اس کی بیوی. یہی مسئلہ امام اعظم کے پاس آیا, 9 عمر تھے, آپ نے لکھا طلاق واقع نہیں ہوئی. سینکڑوں فتوے ایک طرف ہے, امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ایک طرف ہے. مختصر ایک ہی بادشاہ نے سب کو بلوایا, کہا ان علماء کے سامنے کہو بھی طلاق نہیں. کہا الحمدللہ. علماء کو بلایا کہ ایک طرف سینکڑوں علماء بیٹھے, ایک طرف ہمارے امام سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہے. لوگوں نے مکالمہ ہوا, آپ نے کیسے کہہ دیا. امام اعظم نے ارشاد فرمایا, قرآن عظیم کی ایک آیت ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سورہ وقین کی آیت ہے. امام آدم کو کچھ علوم نے لکھا, امام آدم نے کہا لقد خلقنا القمر, ایک مولانا کہا نہیں قمر نہیں ہے, تب کیا ہے لقد خلقنا الشمس, کا نہیں وہ بھی نہیں ہے, پھر کیا ہے لقد خلقنا الانسان. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سب میں حسین اور جمیل بنایا, سب سے خوبصورت بنایا. سبحان اللہ. کہا چاند کو اللہ نے سب سے خوبصورت نہ کہا, سورج کو اللہ نے سب سے خوبصورت نہ کہا. قرآن کہہ رہا انسان سب سے حسین ہے, سب سے جمیل ہے. جب انسان سب سے حسین و جمیل ہے تو خلیفہ کی بیوی بھی تو انسان ہے, لہذا یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. طلاق واقع نہیں ہوئی. یہ مسائل ہیں. شریعت اسلامیہ کہہ سکو تو ادارے شرعیہ یہاں پر قائم کیا گیا. ہمارے سید یونس صاحب کی, سیکورٹی صاحب کی بے پناہ کوششیں اس میں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے. اور وہاں پر قاضی کی حیثیت سے مجھ ناچیز کو بیٹھایا گیا. الحمدللہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, نہ مجھے اس کی کوئی تما نہ کوئی خواہش. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی بننے کی خواہش رکھے تو بھی جائز نہیں ہے, اور قاضی بننے کی درخواست دے تو بھی منع ہے شریعت میں. تو آج تک نہ میں نے قاضی بننے کی خواہش کی اور نہ طمع کیا نہ درخواست دی. ہزاروں مرتبہ میں نے انکار کیا. یہ مبالغے کے طور پر ہزاروں مرتبہ نہیں, سینکڑوں مرتبہ کہہ دی میں نے انکار کیا. لیکن ماحول کو ایسے بنتے گئے اس وعدے کو قبول کرنا بھی ایسے وقت میں بہتر ہوتا ہے جب غلط فیصلے ہوتے رہے اور دین کی رہنمائی کرنے والے ناپید ہوتے رہے. ایسے وقت میں اگر کوئی اس لائق ہو کہ صحیح فیصلہ کر سکے تو اس کو اس چیز کو قبول کر لینا بھی بہتر ہے. بہرحال یہاں پر ایک ادارہ چل رہا, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب میں ادارے کے تعلق سے بتائیں. انشاءاللہ یہ نہیں کہ طلاق کا خلا کا یہ فیصلہ صرف وراثت کا ہو, پراپرٹی کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو جو دینی اعتبار سے آپ حل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ ادارے شریعہ میں صرف نکاح اور طلاق کا مسئلہ, خلا کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے کئی مسئلے پراپرٹیوں کے حل کیے ہیں, اس سے پہلے بھی حل کیے ہیں, بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں. تو ایسا کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو کورٹوں میں جانے سے بہتر یہ ہوتا کہ آئے, اسلام کی روشنی میں
कुरान की रोशनी में फैसला करें, उस पर अमल करें, तो आपको सवाब भी मिलेगा, आपका वक्त भी बचेगा। दूसरी बात यह है कि टेलरिंग हॉल, टेलरिंग कोर्स भी चल रहा है औरतों के लिए। इसके बारे में आप को ज्यादा मालूमात है कि अब तक कितने औरतें यहां से टेलरिंग का कोर्स मुकम्मल करके जा चुकी हैं और उसको अपना जरिए माश उन्होंने बनाया, किफालत का जरिया बनाया। ये भी बेपनाह मेहनतों के बाद हमारी कमेटी की तरफ से यहाँ औरतों की टेलरिंग का एक कोर्स रखा गया है। अब मुझे इस वक्त सही तादाद मालूम नहीं है कि इस वक्त कितने लोग वहां पर टेलरिंग हासिल कर रहे हैं, काफी लोग हैं। कितने बच्चे? 18 बच्चे हैं माशाल्लाह। हसदा क्या करता है हसदा? 18,000 आलम होते हैं बहरहाल, उसको आप फारसी में हसदा बोलते हैं। बहरहाल 18 औरतें एक साल में, अगर 18 निकले तो 6 महीने में 18 माशाल्लाह, एक साल में 18 दूनी 36। इतने लोग यहां से फायदा हासिल करके, और कभी पहले हम लोगों ने ऐसा किया था कि टेलरिंग मशीनें भी दी गई थी कई एक लोगों को, जरूरत जब पड़ी थी। अभी शायद वो मसला नहीं है टेलरिंग मशीन लेने का, लेकिन अगर कभी ऐसा अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया, हमारे हाथों में इतनी ताकत और कुव्वत आई, तो इंशाअल्लाह भी काम किया जाएगा, तो उससे भी फायदा हासिल करें। मगर सबसे अहम चीज मैं ये जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि देखो, ये हमारा सुन्नी अदारा है। आज यहां मिलादुल नबी का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत सारे स्कूल होंगे मैसूर में जहां मिलाद का प्रोग्राम नहीं किया जाता, 11वीं का प्रोग्राम नहीं किया जाता। अब अंदाजा लगा लेंगे, अगर आपका बच्चा यहां आएगा तो खुश अकीदा मुसलमान बनेगा, आशिक़े मुस्तफा बनेगा, नबी का दीवाना या मुस्तफा की दीवानी बनेगी। तो ये दुनियावी तालीम भी यहां से होगी, दीनी तालीम भी यहां से होगी। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा और तमाम टीचर्स से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो काम किया जाए वो ड्यूटी समझ के ना किया जाए। मैं भी अपने को उसी में शामिल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि ड्यूटी समझ के नहीं, बल्कि कौम की खिदमत समझ करके किया जाए, दीन की खिदमत समझ। ड्यूटी समझ कर कोई काम करेगा तो तरक्की इसलिए नहीं हो पाएगी। अल्लाह ताला राज़िक़ है, हम हमारी कमेटी वाली इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते, ना मुझे दे रहे हो तो तनख्वाह कि मेरी किफालत हो जाए, ना आपको उतना दे सकते। अल्लाह ताला सबका राज़िक़ है, इंशाअल्लाह ये एक जरिया बन गए हैं। तो ये ना सोचे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी तस्वुर करके नहीं, बल्कि ड्यूटी के साथ साथ ये तस्वुर रहे कि हम अपने कौम की खिदमत करने के लिए आए हैं, अपने कौम के बच्चों की खिदमत करने के लिए। ये जब जज्बा रहेगा तो इंशाअल्लाह उनदीस काम बेहतर से बेहतर होगा। ये आपके जज्बात होने चाहिए, ये हमारे जज्बात होने चाहिए। अगर ये जज्बात के तहत आप आगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, जो तनख्वाह है वो तो मिलेगी ही, उसके ऊपर सवाब मिलेगा। ड्यूटी तस्वुर करके करेंगे तो सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, सवाब मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों चीजें हासिल करें। मैं अपने कमेटी के जुमला जिम्मेदारों से और सदर साहब आली जनाब निजामुद्दीन अली खान साहब उर्फ मुशीर भाई और आली जनाब सैयद यूनुस साहब, इन सब से जुमला कमेटी के जिम्मेदारों से हमारे सैयद वही साहब, मुख्तार भाई, अकबाल अहमद शरीफ, अकबाल अहमद जावा, सरदार भाई, इन सब से मेरी गुजारिश है कि इदारे की इस्तेहकाम में ये एकदम डट के काम करें। सबसे मेरी गुजारिश, कमेटी वालों गुजारिश है, इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर वक्त दें, अपना टाइम दें, और अगर कोई ऐसी परेशानी हो तो उसको हल करने के लिए जल्द से जल्द आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम।